So, hello everyone. So, this is the third part in the series of biochemistry case studies. So, we have already discussed about the lactose intolerance and von Jurgens disease. In this video, we are going to talk about a new case study. So, these are very important. I have already told you in the previous videos also that they are the major bulk of the question paper. Case studies are very important. So, without wasting time, let's start. A 25-year-old man was on treatment with anti-malarial drug Primaquine. Anti-malarial drug was given, that is Primaquine. As the treatment was in progress, he developed complications. So laboratory findings are given here. Hematocrit was around 30% of the patient. Normal range is from 45 to 50%. Hemoglobin's normal range, do you know that? It is around 13 to 15 gram per deciliter or gram percent. So before treatment of what? Before treatment with the anti-malarial drug, his hemoglobin was around 12 gram per deciliter. But after treatment, it got 8 gram per deciliter. That means the hemoglobin decreased. Decreased hemoglobin is showing the symptom of anemia, right? So the person is facing anemia. Then serum bilirubin, it is around 3.5 milligram per deciliter, but the normal range of the serum bilirubin is less than 1.2 milligram per deciliter. So this shows that increased bilirubin. So increased bilirubin gives the indication of jaundice, right? The symptoms of jaundice are there if there is an increase in bilirubin. Now the laboratory test also indicate increased fragility of erythrocyte. Now we have to tell what is the diagnosis of the same case. So before starting, you should know a very important concept. I hope you know that. So you would be knowing the HMP shunt. Okay, HMP shunt. What's the main role of HMP shunt is it produces NADPH. So it's very important that HMP shunt works properly and NADPH is produced. NADPH plays many roles, many metabolic roles, but in the RBCs, it has it is very important, means it's the only functional thing that is important to RBC, because no mitochondria is there. So NADPH is the sole thing that maintains the integrity and all the activities of RBC. So what happens in the RBC, uh, the there is something called oxidized glutathione. आपने ग्लूटाथायोन आई होप पढ़ा होगा कि वो 3 अमाइनो एसिड से मिलके बनता है. यू शुड नो दैट, है ना. तो ग्लूटाथायोन के बारे में हम कभी और बात करेंगे. सो व्हाट हैपन इज आरबीसी. सो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन. रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि ग्लूटाथायोन अगर रिड्यूस में होता है तो यही है जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बॉडीज़ में वो उसको एलिमिनेट करता है. इंटीग्रिटी जो ऑफ है आरबीसी की मेम्ब्रेन की उसको मेंटेन करता है. एंड ऑल द वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ग्लूटाथायोन. पर ये सिर्फ रिड्यूस्ड फॉर्म में ही एक्ट करता है. ऑक्सीडाइज फॉर्म में ग्लूटाथायोन डजंट एक्ट. इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज. ओके, द एंजाइम रिक्वायर्ड इज ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज. अब ये जो रिएक्शन होती है ना, ये प्रेजेंस में होती है NADPH के. क्यों? क्योंकि NADPH इज़ द को एंजाइम ऑफ ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज. बट क्या होता है, अब ये आपको समझ में आ गया. NADPH की वजह से ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज जो है रिड्यूस ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट करेगा. रिड्यूस ग्लूटाथायोन जो है वो फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करेगा, हीमोलिसिस को रोकेगा एंड मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा आरबीसी के लिए. तो आरबीसी के लिए सोल इम्पॉर्टेंट थिंग जो है NADPH है. बट व्हाट हैपन, जैसे कि ये केस दिखा रहे हैं, इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. ठीक है, G6PD भी कहते हैं. तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है अगर, तो इसका क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि HMP शंट में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है
टू इट्स प्रोडक्ट, लेकिन जो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है वो है G6PD, और इसमें निकलता है NADPH। तो यही है जहाँ से NADPH निकलता है। लेकिन अगर G6PD की डेफिशिएंसी होगी तो NADPH नहीं निकलेगा। NADPH नहीं निकलेगा तो ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज वोंट बी एबल टू वर्क। ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज नहीं वर्क करेगा तो रिड्यूस ग्लूटाथायोन भी नहीं बनेगा। रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा, सो व्हाट हैपन्स, जॉइंटिस के सिम्टम्स दिखेंगे, यानी कि सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि देयर इज़ अ हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी। तो हीमोलिसिस होने लगेगा तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। हीमोलिसिस हो रहा है आरबीसी का तो ऑब्वियस सी बात है हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो दिस शोज एनीमिया। आई होप समझ में आ गया होगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पूरी स्टोरी समझ में आई, ये एक स्टोरी की तरह समझ लिया तो समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। G6PD की डेफिशिएंसी हो रही है, सीवियरली अफेक्टिंग अरिथ्रोसाइट, क्योंकि ये इम्पेयरमेंट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ NADPH का। ठीक है, जो कि एक कोएंजाइम है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज का, जो इनएक्टिवेट करता है फ्री रेडिकल्स को। अब जैसे फ्री रेडिकल्स इतने ज़्यादा बढ़ क्यों जाते हैं, वो रीज़न ये है कि प्रीमाक्योन जो है ना वो फ्री रेडिकल्स को बढ़ा देता है। लेकिन अब ये अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि G6PD की डेफिशिएंसी इनहेंस NADPH की डेफिशिएंसी हो गई। तो रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं बन रहा है। रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं बन रहा है तो आरबीसी का हीमोलिसिस हो रहा है। हीमोलिसिस हो रहा है तो बिलिरुबिन बढ़ रहा है और जॉइंटिस कॉज कर रहा है, और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है जो एनीमिया की सिम्टम्स दे रहा है। तो यही है, हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी हो रहा है, कॉन्सिक्वेंटली जॉइंटिस हो रहा है, और डेटा रिड्यूस हीमोग्लोबिन दिखा रहा है और इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन दिखा रहा है। आई होप समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, वॉन जर्केज आ सकती है या फिर G6PD की डेफिशिएंसी आ सकती है। तो कोई ना कोई केस स्टडी तो आना है पेपर में, या वाइवा में पूछ लेंगे। वाइवा में ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे क्यों हो रहा है ऐसा। आप पूरी अगर स्टोरी बता दोगे तो आपको फुल मार्क्स दे देंगे, नहीं तो नहीं देते। कन्फ्यूज़ करने के लिए तो बैठे होते हैं टीचर्स। तो आपको मेन पर्पस पता होना चाहिए कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए। यू शुड नो द वेरी बेसिक, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा, एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़, होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।